about polynomial regression. Now, before starting with polynomial regression, how it works, let me just explain you in which cases we must go to use polynomial regression. So, for example, let's consider we are having 2 points, like two columns. Like one column is experience, whatever it is, and one column is salary, for example. And whatever the employees, existing employees you are having, so that employees are being distributed like this, let's say. So if this kind of trend is there, we can just say that yes, there is some linear relationship between experience and salary. So this is the line, and I must say that this is the linear line, I must say. So this is the linear relationship, and that is being represented using some line. So line means it is kind of y is equal to yes mx plus c. So this is what the relationship between your output variable and your input variable is. So this is what the relationship between your output variable, this is your output variable y, and this is your input variable x. So what you do find out in machine learning, we find out this relationship. So this is your input variables and this is your output variables. So here y is equal to f of x, and this f defines the relationship. This is what your function is. And here this f is what? Mx plus c. This f is what? Mx plus c. So if this data is distributed like this, and that can be represented using linear line, then we can call that it is kind of linear regression. So here we are using linear regression. So that is okay, that we have discussed, that we have already discussed, that is what linear regression is. But let's, if your data is been distributed like this. So for example, it is your experience and it is your salary, let's say. So salary is your y variable and experience is your x variable. Now that experience and salary, the relationship is like this. Let's we are having a relationship in this kind. So जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे आपका सैलरी भी बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम your salary gets decreased when your experience is going to be increased. Okay, so in that case, I must say that we cannot have linear relationship between your experience and salary. So if you do apply linear regression to this problem, आप देख सकते हैं ये जो भी points है ना, ये points मतलब linear relationship में नहीं है along with x. So y is equal to f of x is not linear relationship. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे relationship if you try to establish a relationship between x and y, that is just going to be like this. So that is what your trend is. This is what your trend is. But if you use linear regression for that purpose, linear line might be, yes, linear regression might going to give you the line like this kind of thing. So that is the minimum cost line we are going to find out. But can I say that ये जो line मैंने red में line निकाला है, linear regression line, that line is not going to define this trend properly. So this is not a proper line that defines the trend. Trend means trend. Trend means the relationship between your x and y. तो ये linear relationship में नहीं है, and that is why we cannot use linear regression. And can I say that in such cases we need to find out this trend, or we need to find out this curve for as a relationship between your y and x. So that means what? Ultimately what we do find out? We find out y is equal to f of x, and here this f is non-linear now. It is non-linear. It is non-linear. Non-linear मतलब ये जो curve होता है ना, curve is always non-linear. Line होता है, that is called as a linear. तो ये जो curve है, that is called as non-linear, and ultimately it is also called as, it is in the relationship like this is in the curve form, and ultimately it is called as a polynomial. It is called as a polynomial. तो इसका मतलब जो भी x and y में जो relationship है, जो भी function आप ढूंढना चाहते हो, that function is polynomial function. So let me tell you, ये जो trend है ना, इसके अभी इसको कैसे लाना है ये डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि what is meant by polynomial.
So if I show you some example, आपको पता चलेगा कि what is mean by polynomial. General definition of polynomial is, सबको पता है what is mean by polynomial. So polynomial, if we just go and see what is polynomial is, तो आप देख सकते हैं this everything that is called as a polynomial relationship. So आप एक देख सकते हैं this is one example of polynomial. I think मैंने आपको एक बार ये निकाल के भी दिया था how polynomial looks like. ठीक है. So yes, you can just see that this is your polynomial is. So polynomial आप देख सकते हैं 5xy square minus 3x plus 5y cube minus 3. So ये जो एक पार्ट है ना उसको टर्म बोलते हैं. This is called as a term. So ये सिंगल सिंगल जो टर्म होता है 5xy square, that is one term. Then minus 3x, that is term. Okay. So, yes, these are the terms. Now, let's understand in depth what is this polynomial means. Let's understand in depth what is this polynomial means. Now, you can just observe that in this polynomial, we are having two variables, x and y. X and y. Okay, so let's consider we are having a polynomial with only one variable. Polynomial with only one variable. यहाँ पे क्या दिया है? Monomials. Okay, binomials, trinomial, polynomials. Okay. सो ये अगर आपको और डेप्थ में जाना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, तो और डेप्थ में आप जा सकते हैं. जनरली हमने क्या देखा है, ये जो बाइनोमियल्स टू टर्म्स वाला दिखा है, सो ये मतलब इसमें सिर्फ टू ही टर्म्स है. ट्राइनोमियल्स में सिर्फ एग्जैक्टली तीन टर्म्स होते हैं. पॉलिनोमियल्स में मतलब तीन से ज्यादा, तीन या तो एनी नंबर ऑफ टर्म्स. दैट इज व्हाट पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड एज. ठीक है. सो और एक चीज यहाँ पे इफ यू आर एबल टू सी, तो लीनियर पॉलिनोमियल मींस व्हाट, इट इज ऑफ डिग्री वन पॉलिनोमियल. इफ यू आर एबल टू सी, ये अगर आप देख सकते हो, तो लेट मी जस्ट सी. नहीं, ठीक है. ठीक है, आई थिंक ये आपको विजिबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, डिग्री वन पॉलिनोमियल. डिग्री वन पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स प्लस एट इज बीन रिटन ओवर हियर, एक्स प्लस एट. सो दिस एक्स प्लस एट, इसमें जो x का जो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री है वो वन है. अभी आप बोलोगे इसमें मैक्सिमम डिग्री क्यों बोल रहे हो, बिकॉज यहाँ पे x प्लस एट में दिस दिस पॉलिनोमियल इज बीन डिवाइडेड इनटू टर्म्स. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इट मींस. सो ये जो x प्लस एट को उन्होंने लीनियर पॉलिनोमियल बोला है, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इट इज. सो x प्लस एट, so I must write this x plus 8 like this. So 1 into x to the power 1 plus 8 into x to the power 0. So can I write this the same equation like this? So same equation, we are having two terms, so here also we are having two terms. तो यहाँ पे जो x है उसका कोएफिशिएंट ये 1 है बाय डिफॉल्ट, तो ये 1 है एंड x का पावर 1 है. यहाँ पे भी x का पावर, लेकिन यहाँ पे x का पावर 0 है, इसका मतलब 8 into 1 ultimately. So this is the same thing. So here we are having two terms. Here we are having two terms. So that is why it is called as a binomial. It is called as a binomial. But I must say that here your independent variable is only one. So यहाँ पे जो independent variable, मतलब अगर मैंने इसको बोला y is equal to x plus 8, so y is your dependent variable and independent variable is only one here. Independent variable is only one here. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y is equal to x1 plus x2 plus 3. So yes, here we are having two independent variables. So ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यूज किया था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मतलब ये जो y का वैल्यू है ना, ये दो कॉलम्स पे डिपेंड होता है, x1 पे भी x2 पे भी. फॉर नाउ ये जो एग्जांपल है इसमें सिर्फ आपका जो y का वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन ओनली x. सो इसलिए मैं सिर्फ एक ही कॉलम लेता हूँ जिसके ऊपर आपका y का वेरिएबल डिपेंडेंट है. सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन आई एम गोइंग टू कंसीडर. तो ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता है. दैट इज व्हाट दे मींस. सो लेट्स गो बैक एंड सी अनदर टाइप्स. अभी देख सकते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसको हमने जो हम स्कूल में इसको पढ़ा, इसको हमने स्कूल में पढ़ा एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस व्हाट, जिसका डिग्री टू होता है, मैक्सिमम डिग्री टू. तो यहाँ पे उन्होंने दिया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7.
So that is what quadratic polynomial is. क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3, सो मैक्सिमम डिग्री कौन सा है वो देखते हैं. यहाँ पे देखो मैक्सिमम डिग्री कितना है x का. सो यहाँ पे 0 एंड 1, तो दोनों में कौन सा मैक्सिमम है 1. सो 1 मैक्सिमम डिग्री है, तो अगर 1 मैक्सिमम डिग्री है तो व्हाट वी कॉल इट एज, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज डिग्री 1. ठीक है. अगर डिग्री 2 है मैक्सिमम, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो दिस इज फॉर सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल लाइक x क्यूब, x स्क्वायर, x x to the power 4 likewise. So yes, these are some types of polynomial as per their degrees, and as per their terms, like monomials, binomials, trinomials and polynomials. Polynomials मतलब जिसमें multiple terms होते हैं. तो इन जनरल हम क्या करेंगे, ये जो भी चारों टाइप्स है ना, इसको सबको हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे. इन जनरल हम कोई भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल में डिस्क्राइब कर सकते हैं. पॉलिनोमियल मींस व्हाट, जो भी इक्वेशन है इसको टर्म्स में डिवाइड किया जा सकता है. तो इसमें देखो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, चार टर्म्स है. इसमें कितने 1 2 3 4 5 टर्म्स है. इसमें कितने 1 2 3 4 टर्म्स है. सो दैट इज व्हाट पॉलिनोमियल इज. So polynomial is like we can just divide polynomial as per number of terms as well as per the degree. So basically here important part over here is that as per the degree. तो यहाँ पे डिग्री का मतलब बहुत बढ़िया होता है. सो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये डिग्री 1 पॉलिनोमियल है. सो ये जो है ना, दिस इज डिग्री 1 पॉलिनोमियल. दिस इज योर डिग्री 1 पॉलिनोमियल. दूसरा मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लाइक लेट्स कंसीडर 3x क्यूब माइनस माइनस 5x plus 2, let's say. This is what your polynomial is. So this is what your polynomial is. तो यहाँ पे can I say that जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम डिग्री क्या है यहाँ पे. So that is what डिग्री 3 we can say. अभी इसको अगर इस फॉर्म में लिया मैंने, टर्म्स के फॉर्म में, तो कितने टर्म्स आएंगे यहाँ पे. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट 3x क्यूब, सो 3 into x to the power 3. अभी यहाँ पे इसके बाद में 1 का पावर है, यहाँ पे x का कितना पावर रहेगा, x to the power 0 रहेगा ऑब्वियसली यहाँ पे. सो यहाँ पे 2 का टर्म नहीं है, तो 2 का टर्म नहीं, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस 0 into x to the power 2 minus 5 into x to the power 1 plus 2 into x to the power 0. So 0 1 2 3 चारों टर्म्स आपको मिल गए. सो ये चार टर्म्स है इसमें, एंड ये जो है ना ये आपका यस ये क्यूबिकल इक्वेशन है, क्योंकि सबसे जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है, मैक्सिमम डिग्री 3 है. सो 4 टर्म्स वी आर हैविंग, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. एंड एवरी टर्म वी डिफाइंड यूजिंग, ये जो हर एक टर्म होता है, लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस 3x क्यूब. तो इसमें जी ये जो 3 है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट. दिस इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट. एंड ये जो 3 है इसको बोलते हैं पावर या तो एक्सपोनेंट. इसको बोलते हैं पावर या तो एक्सपोनेंट. सो एवरी टर्म्स कंपोज ऑफ कोएफिशिएंट एंड पावर, कोएफिशिएंट एंड पावर. सो अभी देखते हैं कि ये जो डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 ये जो पॉलिनोमियल्स है, इसमें अभी एक एग्जैक्टली जो ज्योग्राफी ज्योमेट्रिकली जो डिफरेंस है वो देखते हैं. सो यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन, टेक सम एग्जांपल लाइक डिग्री 1 पॉलिनोमियल, डिग्री 2 पॉलिनोमियल, डिग्री 3 पॉलिनोमियल एंड डिग्री 4 पॉलिनोमियल. तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल के लिए मैं जो एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी टेक एग्जांपल एज x plus 10, y is equal to x plus 10. डिग्री 2 के लिए लेट मी टेक एग्जांपल y is equal to 2x square minus 5x plus 3. सो ये आपका डिग्री 2, बिकॉज मैक्सिमम डिग्री 2 है. डिग्री 3 के लिए y is equal to लेट्स कंसीडर लेट्स 5x cube plus 2x square plus x plus 10. ठीक है. सो यहाँ पे देखो मैक्सिमम डिग्री 3 है. डिग्री 4 के लिए y is equal to 10x to the power 4 minus 20x square. तो ये भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखो x क्यूब नहीं है एंड x का भी टर्म नहीं है एंड x टू द पावर 0 का भी टर्म नहीं, तो दैट इज ओके, उसके कोएफिशिएंट आप 0 यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर
polynomials like 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree. So why it is 1 degree? Because x to the power 1 है, यहाँ पे x to the power 2 है maximum power, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. That is why these are called as degree 2, degree 3, degree 4 polynomials. अभी यहाँ पे सिर्फ एक सी लिया है मैंने, और एक अगर आपको चाहिए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और भी ले सकते हैं, उसका एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे. लेकिन ये जो चार है इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो चार है इनमें डिफरेंस क्या है? सो लेट मी जस्ट टेल यू. अगर इसका आपने प्लॉट किया, इफ यू जस्ट प्लॉट दिस काइंड ऑफ कर्व, तो ये जो कर्व है ना ये हमेशा लीनियर दिखते हैं ऐसे. सो फॉर एग्जांपल इट इज जस्ट काइंड ऑफ दिस कर्व. तो ये एक लाइन होता है, इट इज ऑलवेज काइंड ऑफ लाइन. तो अगर आपने डिग्री 1 का पॉलिनोमियल अगर आपने प्लॉट किया तो इट इज ऑलवेज काइंड ऑफ अ लीनियर लाइन. तो ये यूज होता है आपका लीनियर रिग्रेशन में, इट इज बीन यूज इन लीनियर रिग्रेशन. अगर ये आपने यूज किया तो लेट मी जस्ट टेक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब इसका जो x का जो कोएफिशिएंट है वो भी जीरो है एंड x टू द पावर जीरो का भी जीरो है, ऐसे कंसीडर करें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सिंपल टू ड्रॉ. तो ये जो कर्व है ये कैसे दिखता है आपको? इट इज जस्ट बीन लुकिंग लाइक दिस. ये सिंपली ऐसा दिखता है. अगर आपने डिग्री 3 वाला सिंपलेस्ट कर्व देखा, डिग्री 3 वाला, तो डिग्री 3 वाला सिंपलेस्ट कर्व क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट जीरो लिया, एक्स का भी कोएफिशिएंट जीरो एंड एक्स टू द पावर जीरो का भी कोएफिशिएंट जीरो लिया, तो यू आर जस्ट गोइंग टू गेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ये 5 में नहीं कंसीडर करता, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ये आपको समझ में आया इसलिए मैं लिख रहा हूँ. तो अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया तो ये कैसे दिखता है कर? इट इज थोड़ा सा एक्स स्क्वायर जैसा दिखता है, लेकिन इसका जो स्टेप होता है ना ये बहुत ही एक्सट्रीम होता है. सो ये थोड़ा सा धीरे से बढ़ता है, ये फास्ट बढ़ता है. ठीक है, क्योंकि देखो वन वन के लिए तो वन ही रहेगा, लेकिन टू के लिए ये होता है 8 वैल्यू एक्स स्क्वायर का, एंड सॉरी टू के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है, थ्री के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 8 होता है, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब का वैल्यू 8 होता है. अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक्स का वैल्यू 5 रखा, सो इफ एक्स का वैल्यू 5, तो आपको एक्स स्क्वायर क्या देगा? 25 देगा. लेकिन ये जो एक्स क्यूब है ये क्या देगा? 125 देता है. तो ये बहुत फास्ट बढ़ जाता है. सो दैट इज वाई ये थोड़ा सा ऐसा कर्व होगा. लाइकवाइज एक्स कोर भी वैसे होगा. सो अगर आपने एक्स कोर निकाला एक्स टू द पावर 4, सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, तो ये तो और भी स्टीप होता है ऐसे. ठीक है. So these are some differences between your normal equations. लेकिन अगर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स लिया, मतलब एक्स क्यूब का टर्म है उसके साथ मैंने एडअप किया स्क्वायर का टर्म, उसके साथ मैंने एडअप किया सिंबल टर्म, उसके एडअप किया एक कांस्टेंट, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो अलग अलग होता है. सो ये जो चार एग्जांपल्स है ये मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, दिखाता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. सो कैन आई से दैट जैसे मैं डिग्री 1 से डिग्री 4 तक जाता हूँ वैसे आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, वैसे आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, वैसे आपका कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगा जैसे हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के साथ जाएंगे. ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का एक फायदा भी होता है. व्हाट इज दैट बेनिफिट इज? सो अगर आपका डेटा अगर कॉम्प्लिकेटेड लाइक रिलेशनशिप में, सो इफ दीज आर योर डेटा पॉइंट्स, तो आपका कर्व कैसे आना चाहिए? सो योर कर्व मस्ट बी लाइक दिस. अगर ये डेटा पॉइंट्स है तो ऐसा कुछ तो कर्व है. सो दिस कर्व इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन दैट केस, इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो अगर आपका डेटा कॉम्प्लिकेट रिलेशनशिप में है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला मतलब हाई डिग्री पॉलिनोमियल यूज करो. अगर आपका जो डेटा है ये नॉर्मल रिलेशनशिप में है, नॉर्मल रिलेशनशिप मतलब ऐसा, तो इस केस में लो डिग्री पॉलिनोमियल यूज करो, मतलब स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्यूब, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स टू एंड एक्स टू द पावर 1 एंड एक्स टू द पावर 0. सो ऐसे कॉम्बिनेशन प्लस माइनस जो भी उनके कोएफिशिएंट्स है उनके साथ आप ये रिलेशनशिप ऐसा डिस्टेब्लिश कर सकते हो. सो लेट मी जस्ट टेक वन एग्जांपल. तो जो भी हमने पॉलिनोमियल्स निकाले ये मैं निकालता हूँ. सो लेट मी जस्ट यूज सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू ड्रॉ द फंक्शंस. तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वेयर आपका ऐसे दिखता है. सो दैट इज ऑन, मैंने सिर्फ आपको पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स दिखाया है. लाइकवाइज यू कैन जस्ट सी आल्सो नेगेटिव साइड ऑफ दिस आल्सो. सो दिस इज व्हाट योर एक्स स्क्वेयर इज. अभी इसके साथ अगर आपने किया क्यूब वाला,
ठीक है। तो अगर क्यूब आपने दिखाया तो क्यूब देखो कैसे दिखता है, एक्स क्यूब। तो आप बोलोगे ये यहाँ पे डायरेक्टली नीचे कैसे हुआ, क्योंकि ये जो एक्स क्यूब है ना, ये निगेटिव वैल्यू का क्यूब ये निगेटिव ही होता है। स्क्वायर के बारे में वैसे नहीं होता, स्क्वायर के बारे में वैसे नहीं होता। अगर मैंने पावर 4 रखा तो कैन आई से दैट इट इज गोइंग टू बी लाइक सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस। तो जैसे एक्स स्क्वायर था वैसे। तो आप देख सकते हैं। सो ये जो है ना, दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन योर पावर्स। अगर आपने सिर्फ x डाला, यू कैन जस्ट से दिस इज द लीनियर लाइन। अगर आपने x पावर 2 किया, सो यू कैन जस्ट सी x टू द पावर 2 लाइक दिस। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये जो इक्वेशंस हमने लिखे यहाँ पे, सो वो इक्वेशंस को हम ट्राई करते हैं ये कैसे दिखेंगे इस इक्वेशंस को। तो x प्लस 10 आपको दिखाता हूँ मैं पहले, x प्लस 10। सो x प्लस 10। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप x+10। सो आई थिंक इसको कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं क्या, लेट लेट मी जस्ट, हाँ, ये आप देख सकते हैं दिस इज योर x+10। सो कैन आई से दैट दिस इज लीनियर लाइन? यस। सो दिस इज योर लीनियर लाइन एज, दिस इज योर लीनियर लाइन एज। सो ये मैंने आपको बता दिया था। लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन, 2x² माइनस 5x प्लस 3। 2x² 2x² माइनस 5x प्लस 3। सो आप देख सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ दिस इक्वेशन इज। सो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन ऐसा कुछ तो बना। तो थोड़ा सा स्क्वायर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये जो नॉर्मल ओनली स्क्वायर है उससे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। सो काइंड ऑफ इक्वेशन वी आर हैविंग। तो ये आपका सेकेंड वाला इक्वेशन बना, मतलब ये सेकेंड वाला। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना। अभी थर्ड वाला हम कंसिडर करते हैं। लेट मी कंसिडर सम, ये थर्ड वाला इक्वेशन, इसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट करता हूँ। कॉम्प्लिकेट करता हूँ मतलब कैसे करता हूँ, कुछ प्लस माइनस लिखता हूँ। तो यहाँ पे प्लस है ना, इसको मैं करता हूँ माइनस। यहाँ पे प्लस है, इसको मैं करता हूँ माइनस। सो प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन देखिए। सो 5x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 10। ठीक है। सो दैट इज 5x³ माइनस 2x², 2x² plus x minus 10. I think this is what the equation is. Okay, so now you can just see the equation. ये आप देख सकते हैं, this equation you can just see. अभी थोड़ा सा छोटा करता हूँ और मैं, आप देख सकते हैं what is this equation is. So ये equation yes है। so अगर आपको और अच्छा देखना है तो मैं जो है ना ये 5 टर्म्स को निकालता हूँ। तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, बहुत ही स्टीप दिख रहा है आपको। हाँ, अभी देख सकते हैं आप। ठीक है। सो ये जो है ना, ये अगर ऐसे रिलेशनशिप में आपका डेटा है तो यू कैन जस्ट यूज दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। एंड लेट मी जस्ट यूज, अगर ये 2 है, लेट मी जस्ट यूज द 5। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन अभी कैसा बन रहा है। तो यू कैन जस्ट सी दैट ये ऐसे बन रहा है इक्वेशन। तो ये ऐसे ऊपर जाके फिर से नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस negative term, because of this negative term, because of this negative term. Let me just again use this as a negative। तो आप देख सकते हैं this is again going to be like this। ठीक है, this is again going to be like this। अभी ये जो x³ है ना, इसको मैं करता हूँ 0.2x³, 0.3 लिखा है। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देख सकते हैं आप कैसे रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, कैसे रिलेशनशिप आपका बिल्डअप हो रहा है। ठीक है। सो यस, दिस इज अगेन कॉम्प्लिकेटेड वन वी आर हैविंग नाउ नाउ ठीक है। अभी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन इज 10x टू द पावर 4 माइनस 20x²। सिर्फ सिर्फ इतना ही है। तो 10 10x टू द पावर 4 माइनस 20x²। ठीक है, इसको और बढ़ाता हूं मैं, प्लस ऑफ प्लस लाइक 50x, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो। आई एम जस्ट गोइंग टू, अभी देखो ये थोड़ा सा बहुत ही स्टीप हो गया। तो लेट मी जस्ट यूज दिस, ये जो 10 है ना ये हटा देता हूं मैं, क्योंकि ये
ऐसे दिख रहा है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये जो इक्वेशन है ना, इतना यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-4 लाइन आ गए। सो लेट मी जस्ट यूज दिस, जस्ट रिमूव दिस इक्वेशन। ओके, सो ये वैसे ही फंक्शन दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा था -x स्क्वायर, तो ये ऐसे हो रहा है। सो लेट मी जस्ट यूज दिस एज ए 2। ओके, लेट मी यूज दैट एज 4। तो आप देख सकते हैं हाउ इट इज चेंजिंग। You can just see how it is changing. Now this is what the relationship is. So जैसे आप ये terms बढ़ाओगे ना, वैसे complicated equation we can establish between your x and y variables. तो ये जो इक्वेशन है ना, इस सब इक्वेशंस में, ये सारे इक्वेशंस में हमने सिर्फ एक ही टर्म यूज किया है, दैट इज एक ही वेरिएबल यूज किया है, दैट इज x। तो y का वैल्यू सिर्फ x के ऊपर डिपेंड है, आइदर इन स्क्वायर में, या तो पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 0, ऐसे। सो ये लाइक ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन है विथ लाइक विथ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर आपका ये जो y है, if I just tell you y is going to be a function of x1 as well as x2, let's say, मतलब ये जो y का वैल्यू है x1 एंड x2 के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी देखो ये जो x1 एंड x2 के ऊपर डिपेंड है y का वैल्यू, तो आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ हियर, क्योंकि ये 2D में नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें y भी प्लॉट करना है, x भी प्लॉट करना है, x2 भी प्लॉट करना है, तो ये 3D में दिखाना पॉसिबल नहीं है। बट इसका जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल इक्वेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में लिखता हूँ। सो व्हाट इज दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी, सो y इज इक्वल टू, आई कैन जस्ट राइट इट एज x1 cube plus 2 times x1 square into x2 plus 5 times x1 into x2 square plus uh, plus या तो minus whatever that is only x1, not x1 into only x2 bracket x2 cube minus, then after that only x1 x2, that is 10 x1 x2 plus 20. So such kind of equation we can just have, such kind of equation we can just have if we are going with multiple variables, like यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि एक्सपीरियंस भी है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आपका क्वालिफिकेशन भी है। तो ये जो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन आपके इनपुट वेरिएबल है, y इज गोइंग टू बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो उनका रिलेशनशिप ऐसे, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो कैन जस्ट मेक कॉम्बिनेशन ऑफ योर x1 का डिग्री एंड x2 का डिग्री। तो इनिशियली लेट मी जस्ट राइट डाउन x1 का डिग्री एंड x2 का डिग्री। तो इनिशियली x1 का डिग्री 3 है, तो x2 का उस केस में मैंने 0 किया। बाद में ये 2 है, ये 1 है, बाद में ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 3 है। So every combination I am going to check. तो यहाँ पे 3 0 2 1 1 2 0 3 हर एक कॉम्बिनेशन डालेंगे। Along with this combination we are just going to use 1 1 combination as well as 2 2 combination, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे 1 1 एंड 2 2 कॉम्बिनेशन नहीं, सो दैट आल्सो वी कैन यूज। सो ये 1 1 वाला कॉम्बिनेशन x1 टू द पावर 1 x2 पावर 1, 2 2 वाला नहीं लिखा है, सो वो हम लिख सकते हैं 20 x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, सॉरी x2 स्क्वायर। सो ये डिपेंड होता है कि ये आपका कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है आपके y में एंड x1 एंड x2 पे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। So yes, also we can just find out these complex equations into polynomial regression. Polynomial regression में इनके बीच वाला भी हम complex जो भी equation है find out कर सकते हैं। And इससे भी ज़्यादा अगर बहुत बहुत complicated है आपका relationship between y and x, then we go for neural networks. Then in that case we go for neural networks. So let's discuss this later on, neural network कैसे काम करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं। तो यहाँ पे y में एंड x में एक रिलेशनशिप है। एक बात तो हमें पता है कि दैट इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप, तो वो लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर है।
तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है. सो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वी हैव टू फाइंड आउट. तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये तो लीनियर तो नहीं है. इट इज नॉट लीनियर, मतलब डिग्री वन पॉलिनोमियल तो यहाँ पे काम नहीं करेगा. डिग्री इज इक्वल टू वन क्योंकि ये लाइन होता है. सो डिग्री इज इक्वल टू वन वाला पॉलिनोमियल काम नहीं करेगा. सो वी हैव टू ट्राई फॉर डिग्री इज इक्वल टू टू वाला पॉलिनोमियल. मतलब क्या कि देर इज द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x का टू पावर. मतलब क्या y इज इक्वल टू ऐसे आपका इक्वेशन हो सकता है दैट इज 3x² प्लस 5x माइनस 10. सो काइंड ऑफ इक्वेशन वी कैन हैव. लीनियर में कैसे होता है x प्लस 10 लाइकवाइज. तो वैसे डिग्री टू का जो पॉलिनोमियल तो इसमें ऐसा कुछ तो रिलेशनशिप होता है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. अभी यहाँ पे सिर्फ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है. तो इसका मतलब मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे x² का एक होगा, x टू द पावर 1 का एक होगा एंड x टू द पावर 0 का एक होगा. सो लेट मी जस्ट रीराइट दिस इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है ना इसको मैं रीराइट करता हूँ कि वी आर हैविंग one term of x², we are having another term of x to the power 1 and we are having another term of x to the power 0. तो इसका कोएफिशिएंट क्या है x² का कोएफिशिएंट दैट इज 3. 3 into x². x to the power 1 का कोएफिशिएंट है 5 एंड ये जो x to the power 0 है यहाँ पे x to the power 0 उसका टर्म है उसका कोएफिशिएंट है 10 एंड उनके पावर. एंड दिस इज व्हाट योर equation is going to be. So that is y is equal to this particular equation. For example ये equation काम करता है तो इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये जो भी हमारा वट एवर डेटा वी आर हैविंग ओवर हियर ये थोड़ा सा नॉर्मल डेटा है. ये थोड़ा सा नॉर्मल डेटा है. तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आपका x टू द पावर 2 का पॉलिनोमियल चल जाएगा काम यहाँ पे. ऐसा कंसीडर करते हैं. ठीक है. अगर ये भी काम नहीं करा तो वी हैव टू यूज x³ वाला पॉलिनोमियल. तो पहले तो x² वाला पॉलिनोमियल यूज करते हैं डिग्री टू पॉलिनोमियल. तो डिग्री टू पॉलिनोमियल में सच काइंड ऑफ इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट. तो ये जो इक्वेशन है सो लेट मी हाईलाइट कोएफिशिएंट्स इनटू इट. सो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रैकेट देम यूजिंग येलो कलर. तो पहले का कोएफिशिएंट 3 है, दूसरे का कोएफिशिएंट 5 है, तीसरे का कोएफिशिएंट 10. 10 नहीं या -10 बोलना चाहिए मुझे क्योंकि अगर ये बाय डिफॉल्ट प्लस है तो -10 इज गोइंग टू बी वन कोएफिशिएंट. इसमें जो पावर के टर्म्स है दैट इज x² x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर 0. now what I will do, I will just do a change here that I will just consider a for x², b for x to the power 1 and c for x to the power 0. so these are just प्लेस होल्डर्स फॉर योर एक्स पावर्स. मतलब ऐसे कंसिडर करो कि ए बी सी आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स. तो यहाँ पे x² x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर 0 के लिए आई एम जस्ट रीराइटिंग दिस टर्म्स. तो ये कैसे होगा 3 टाइम्स a प्लस 5 टाइम्स b माइनस 10 टाइम्स c. तो यहाँ पे इफ आई जस्ट रीराइट दिस इक्वेशन कैन आई से दैट y इज गोइंग टू बी फंक्शन ऑफ a b and c. So can I write this particular equation like this? So y is going to be function of a b c and let's consider a b and c are three different variables. A, B, C are three different variables. And यहाँ पे जो 3, 5, let me just use a red color to identify 3, 5 minus 10. ये क्या है? ये आपके थीटा 0, थीटा 1 एंड थीटा 2 है. मतलब क्या? मतलब जो हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यूज किया था. सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये जो m था ये आपका थीटा 1 था प्लस ये जो c था वो क्या था थीटा 0 था. तो ये जो है ये आपके क्या है इन्फ्लुएंस पैरामीटर कि आपका ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये आपके y में कितना कंट्रीब्यूट करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a 3 टाइम्स लिया है, b 5 टाइम्स लिया है. मतलब b का इन्फ्लुएंस ज्यादा है y में. सो जो भी y आपका आउटपुट है उसमें b का इन्फ्लुएंस ज्यादा है देन a. सो दैट इज व्हाट योर कोएफिशिएंट्स आर. सो ये कोएफिशिएंट्स हमने फाइंड आउट किए थे इन लीनियर रिग्रेशन इफ यू रिमेंबर यूजिंग विच टेक्निक. ये जो थीटा 1 एंड थीटा 0 इसका वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट किया था? डू यू रिमेंबर दैट टेक्निक? हाउ डू यू फाइंड आउट थीटा 1 एंड थीटा 0? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज.
यस, दैट इज ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट कभी भी भूलना नहीं है आपको, ग्रेडियंट डिसेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्रेडियंट डिसेंट, यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट हमने थीटा 1 एंड थीटा 0 निकाल दिया। तो व्हाट विल डू नाउ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ए बी एंड सी है इनके हम जो कोएफिशिएंट्स है, ये जो भी थीटा 0 है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, या तो थीटा 0 थीटा 1 थीटा 2 ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो टर्म्स टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स है ये हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, जैसे हम लीनियर रिग्रेशन में करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये लीनियर रिग्रेशन कहाँ पे, सी। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है कि आपके पास जो x था ना, सिंपल x, तो उसका मैंने एक कॉलम नया बना दिया, दैट इज a। तो एक्स स्क्वेयर्स लूंगा मैं हर एक का, दैट इज गोइंग टू बी योर कॉलम a। हर एक का सिर्फ x लूंगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉलम b। एंड x टू द पावर 0 मतलब एवरी वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, सो दैट इज योर कॉलम c। तो इसका मतलब आपके पास अभी सिर्फ x कॉलम नहीं है, मतलब सिर्फ सैलरी कॉलम नहीं है, आपके पास सैलरी स्क्वायर भी है, सॉरी सैलरी नहीं, एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस इज इंडिपेंडेंट ना। सो एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ए कॉलम मतलब कौन सा हो गया, एक्सपीरियंस का स्क्वायर। बी कॉलम मतलब कौन सा हो गया, ओनली एक्सपीरियंस टू द पावर 1 मतलब ओनली एक्सपीरियंस। एंड सी कॉलम मतलब क्या हुआ, एक्सपीरियंस का पावर 0 मतलब ऑल वंस। तो अल्टीमेटली अगर आपको ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये 3 आपको फाइंड आउट करना है, ये 5 आपको फाइंड आउट करना है, ये -10 आपको फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वेयर, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 0 इनका क्या, तो ये हम क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, लेट मी टेल यू। सो यहाँ पे मैं एक अभी डेटा लेता हूँ जहाँ पे आप हम बोल सकते हैं कि ये एक डेटा सेट है, सो दैट इज एक्स एंड वाई वी आर हैविंग। सो वाई जो है ये आपका आउटपुट वेरिएबल है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्स है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इनपुट वेरिएबल है, ये आपका वाई वेरिएबल है। सो यहाँ पे आपको क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कुछ वैल्यूज है, 2 5 8 16 9 3 4 7 likewise, एंड उसके रिस्पेक्टिव कुछ वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल इट इज 5 6 7 20, देन 5, देन 8 8 2 1 likewise। तो वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन बिटवीन x एंड y। पहली बात तो ये x एंड y में लीनियर रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालना है। अगर हमने इस डेटा को प्लॉट किया तो ये डेटा ऐसे दिखता है, तो ये दिस इज योर x, दिस इज योर y, एंड ये डेटा जो दिखता है ये आपको ऐसे कुछ तो दिख रहा है डेटा। सो जैसे x के अकॉर्डिंगली y की वैल्यू ऐसे चेंज हो रहा है। तो एक तो बात फिक्स है कि आपको एफ ऑफ एक्स नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, आपको एक्स स्क्वायर निकालना है। मतलब आपको ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू, सो लेट्स कंसीडर 10। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन है, ऐसे कंसीडर करते हैं। अगर ये टाइप ऑफ इक्वेशन इस पे परफेक्टली फिट नहीं होता तो हम एक्स क्यूब के इक्वेशन के लिए जाएंगे। जनरली ऐसे जरूरत नहीं पड़ते, नॉर्मल इक्वेशन सारे फिट होते हैं इस फॉर्म में। तो इसका जो टर्म है दैट इज थीटा 0 थीटा 1 थीटा 2, ये हमें फाइंड आउट करना अल्टीमेटली। ठीक है, सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा सेट है इसको अभी मैं थोड़े से अलग से डेटा सेट में कन्वर्ट करूंगा। सो लेट मी जस्ट कन्वर्ट दैट डेटा सेट इनटू अनदर टाइप ऑफ डेटा सेट। ये एक हमें चीज पता चलेगी, जैसे मैं डेटा ड्रॉ करता हूँ, ये प्लॉट करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे पता चला कि यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करना है। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करना है तो पहले हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू यूज डिग्री टू पॉलिनोमियल टू फिट द डेटा। तो डेटा को फिट करने के लिए डिग्री टू पॉलिनोमियल अभी हम यूज करने वाले। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कन्वर्ट दिस डेटा ऑफ एक्स एंड वाई इनटू अनदर फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स है ना, ये एक्स में 3 वेरिएबल में डिवाइड करता हूँ, ए में, बी में, सी में। तो ये हो गया आपके इंडिपेंडेंट। वाई वैसे की वैसे रहेगा आउटपुट वेरिएबल, लेकिन जो आपके इनपुट वेरिएबल है ये है ए बी एंड सी। तो एक का वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करें, देखो यहाँ पे आपको डेटा भी जनरेट करना है अभी। सो यहाँ पे हम डेटा जनरेट कर रहे हैं सो दैट वी कैन फिट दिस डेटा टू पॉलिनोमियल।
तो हम क्या करेंगे, इस a को कैसे जनरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर से जनरेट करेंगे, b को कैसे जनरेट करेंगे, यूजिंग x, एंड c को कैसे जनरेट करेंगे, यूजिंग x टू द पावर 0। ठीक है, अभी मुझे बताओ x का वैल्यू कुछ भी हो, x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। सो इसका मतलब c के सारे वैल्यूज क्या हो गए, 1 हो गया अल्टीमेटली। हाँ, सो ये पहले डेटा को मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ x कॉलम है ना, तो यहाँ पे उसको 3 कॉलम में मैं कन्वर्ट किया, तो x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वायर का कितना रहेगा, 2 का पावर 4। एक्स टू द पावर 1 का क्या रहेगा, अगर x का वैल्यू 2 है तो x टू द पावर 1 का क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, बिकॉज दैट इज द सेम। तो इसका मतलब ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, इट इज सेम लाइक योर बी कॉलम। तो ये मैं एज इट इज लिखता हूँ, 5 8 16 9 3 4 लाइकवाइज। एंड एक्स स्क्वायर मतलब क्या, ये जो है ना इस हर एक वैल्यू का स्क्वायर, तो ये x है उसका स्क्वायर, ये x है, 5 का स्क्वायर इज 25, ये क्या 8 है ना, हाँ 8 का स्क्वायर इज 64, 16 का स्क्वायर इज 256, 9 का स्क्वायर इज 81, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 लाइकवाइज। तो इसका मतलब आपके पास एक ही कॉलम था, इससे आपने कितने कॉलम्स क्रिएट करे, ये एक कॉलम क्रिएट किया, ये एक किया, ये एक किया। And now what we'll do, we'll try to find out equation between this y and this ABC. So we'll try to find out equation, which equation, y is equal to function of a b c। तो अगर मैंने y is equal to function of a b c ट्राई किया फाइंड आउट करने के लिए, ये क्या क्या देगा हमें, थीटा 0 देगा, थीटा 1 देगा एंड थीटा 2 देगा। theta 0 is coefficient for your a column, theta 1 is coefficient for b column, theta 2 is coefficient for c column, that is it। तो ये जो है ये कोएफिशिएंट मिलेंगे, तो वी कैन जस्ट यूज दिस कोएफिशिएंट टू पुट द रिलेशनशिप एज y is equal to theta 0 x square plus theta 1 x plus theta 2 एज इट इज। सो यहाँ पे x टू द पावर 0 लिखने का मतलब नहीं, अगर लिखना है तो लिखो। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल इक्वेशन व्हाट वी गॉट। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसे कुछ पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो टू गेट दैट पॉलिनोमियल आपको जो मशीन लर्निंग इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वो आपको यस डिग्री टू इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो डिग्री टू इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन उनके पावर्स हम यूज करने वाले हैं। तो डिग्री टू के लिए मैक्सिमम कितने पावर्स आएंगे, 3 पावर्स आएंगे डिग्री टू के लिए। अगर मैंने डिग्री 3 बोला, अगर अगर ऐसे है कि डिग्री 2 के लिए जो आपको यहाँ पे इक्वेशन मिला, बेस्ट फिट इक्वेशन, वो ऐसे मिल रहा है फॉर एग्जांपल, ऐसे मतलब ये प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है, तो ये मैक्सिमम ट्राई करने के बाद इतना मिला, तो हम इसका मतलब क्या कि हमारा डिग्री 2 पॉलिनोमियल इस डेटा पे जो भी रेड कर्व है इस पे फिट नहीं हो रहा है। तो व्हाट विल डू यूज देन, विल यूज डिग्री 3 पॉलिनोमियल। सो डिग्री 3 पॉलिनोमियल मतलब इसमें सिर्फ और एक कॉलम ऐड होगा, एक्स क्यूब। तो ये भी पॉलिनोमियल हम ऐड करेंगे एंड उसके हिसाब से उसका भी कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, एंड उसका कोएफिशिएंट के हिसाब से अगर हमने बाद में अगर ये इक्वेशन प्लॉट किया, तो फॉर एग्जांपल ये ऐसा मिल रहा है, तो इट विल ट्राई टू फिट दैट पर्टिकुलर डेटा। तो जैसे आप ये डिग्रीज यूज करोगे, ज्यादा डिग्रीज, वैसे आप इस कर्व को कैसे भी मोल्ड कर सकते हो। तो इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाता है, अगर आपने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया इस कर्व का, डिग्री 3 किया, डिग्री 4 5 डिग्री 7, तो ये और फ्लेक्सिबल होता है, तो कैसे भी डेटा हो इट ट्राइज टू कैच अप दैट पर्टिकुलर डेटा। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपका ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम होगा, अगर मतलब बेवजह हमने डिग्रीज यूज किए, हायर डिग्रीज यूज किए, तो आपका ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज व्हाई जितना कम हो उतना हम डिग्री कम यूज करते हैं, सो दैट आपका कॉम्प्लेक्सिटी कम रहे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का। आपको पता होगा हमने ओवर फिटिंग डिस्कस किया था कि इन इन डिसीजन ट्री, कि ये बेवजह अगर आपका ट्री कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वो ओवर फिटिंग होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है, अगर बेवजह हमने डिग्रीज ज्यादा यूज किए पॉलिनोमियल के, तो ओवर फिटिंग हो जाता है। सो ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका ओरिजिनल डेटा है उसको कन्वर्ट करो इनटू मल्टीपल कॉलम्स, सो दैट ईच एंड एवरी कॉलम वी हैव टू यूज as an individual independent column to form the relation between this a b c and y।
तो y एंड abc में अल्टीमेटली हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे abc 3 कॉलम्स है एंड y इज इक्वल टू दिस फंक्शन ऑफ abc, मतलब ये अल्टीमेटली फंक्शन क्या बनेगा हमारा, लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट ओवर हियर, y इज इक्वल टू थीटा 0 a प्लस थीटा 1 b प्लस थीटा 2 c, so that kind of equation we are going to find out। तो मुझे तो ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट मतलब अल्टीमेटली यू कैन यूज लीनियर रिग्रेशन फॉर दैट। इसके लिए आप लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड दिस abc। ठीक है, तो ये तीनों है ना, ये एक 3 कॉलम से अलग अलग से ऐसे हम कंसीडर करेंगे, उसके हिसाब से थीटा 0 थीटा 1 एंड थीटा 2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लीनियर रिग्रेशन ही यूज करेंगे अल्टीमेटली। पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए देयर इज नो एनी लाइक काइंड ऑफ रिग्रेशन टेक्निक्स, इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल टेक्निक in which we use the linear regression to find out the coefficients of or influence factors of this column and this column, and will use the linear regression technique to find out the polynomials ultimately, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक कॉलम है तो उस कॉलम को आप कन्वर्ट करो इन मल्टीपल डिग्रीज, जितना कॉम्प्लेक्स चाहिए उतना ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स डिग्रीज में कन्वर्ट करो एंड देन आफ्टर दैट इनके कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करो, जैसे लीनियर रिग्रेशन में फाइंड आउट करें। तो अल्टीमेटली टू फाइंड आउट दिस थीटा 0 थीटा 1 एंड थीटा 2 वी आर गोइंग टू यूज लीनियर रिग्रेशन ओनली। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, ये जो डेटा है ये जो है ना ये एक्चुअली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो लेट्स गो एंड एक्चुअली इंप्लीमेंट दिस आउट, तो इसके लिए मैं एक डेटा सेट लेता हूँ, देखते हैं अभी डेटा सेट है कि नहीं मेरे पास, लेकिन जस्ट गो एंड अगर नहीं है तो क्रिएट करेंगे डेटा सेट, सो दैट आपका जो रिलेशनशिप होगा इन एक्स एंड वाई इज दिस काइंड ऑफ कर्व। तो ऐसा कर्व होगा, ऐसा रिलेशनशिप वाला हम डेटा यूज करेंगे, एक्सपीरियंस एंड सैलरी वाला। सो आई थिंक मैंने कब बना के रखा होगा उसको, सैलरी डेटा रिग्रेशन, आई थिंक दिस इज दैट डेटा, सैलरी का ही था वो। लेट मी से वेदर इट इज देयर और नॉट। लेट मी यूज दिस डेटा डायरेक्टली, सो ये लोड करके यूज करता हूँ उसको। लेट मी यूज दैट इनटू DSML4, राइट। ये ऑलरेडी है, ठीक है। ओके, मैं रिप्लेस करता हूँ एंड लेट मी यूज द Jupyter टू रीड द डेटा। So we are using ultimately a linear regression to implement a polynomial regression. DSML4 and let me create a new file as polynomial regression. So yes, let me import pandas as PD. Sorry. Let me import the data. Data frame is equal to PD dot read. I think that is Excel file. What is the name of file? Salary experience. ठीक है. ओके, सो पहले इस डेटा को प्लॉट करते हैं, एक्सपीरियंस
अगेंस्ट सैलरी अगेंस्ट एक्सपेंस। इस डेटा को मैं डिस्प्ले करता हूँ यूजिंग स्कैटर प्लॉट, plt डॉट स्कैटर। तो वहां पे मैं प्लॉट करता हूँ df ऑफ एक्स एक्सिस पे एक्सपीरियंस एंड वाई एक्सिस पे df ऑफ सैलरी। So yes, you can just see that this is having kind of non-linear relationship. तो यहाँ पे कैन आई से दैट यहाँ पे एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब मैं ट्राई करूंगा कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल यहाँ पे मैचअप हो जाएगा क्या। अगर नहीं होता तो डिग्री 3 वाला मैचअप करके देखते हैं, बाद में डिग्री 4 वाला मैचअप करके देखते हैं। सो काइंड ऑफ वी कैन जस्ट गो फॉर, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंपली ऐसे कर होना चाहिए आपका। तो जो भी डेटा है ना इसमें आप देख सकते हैं जैसे एक्सपीरियंस आपका आफ्टर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे सैलरी कम हो रहा है। सो काइंड ऑफ अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो जस्ट विल ट्राई टू फाइंड दिस काइंड ऑफ कर्व ओवर हियर, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो आपका एक्सपीरियंस है इसलिए मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, यस 3 कॉलम बनाता हूँ, ए कॉलम बी कॉलम सी कॉलम। तो ये जो 3 कॉलम है इसमें x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, ये 3 कॉलम में बनाता हूँ। ये 3 कॉलम्स में बनाता हूँ। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन बिटवीन योर x एंड y, x एंड y। सो अल्टीमेटली इक्वेशन x एंड y के बीच में सिर्फ x के पावर्स चेंज हो रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, ये 3 कॉलम्स अभी बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल अभी फिलहाल चेक करना है। तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल में चेक करता हूँ। ठीक है, डिग्री 1 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि डिग्री 1 में ये लीनियर लाइन आने वाला है, इसलिए डिग्री 1 तो मैं चेक नहीं करता, लेकिन डिग्री 2 चेक करते हैं। सो डिग्री 2 चेक करने के लिए वी आर गोइंग टू हैव दिस 3 कॉलम्स। तो ये 3 कॉलम्स बनाता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का एक कॉलम, x1 का कॉलम, x टू द पावर 0 का कॉलम। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक डेटा सेट बनाता हूँ। सो लेट मी कॉल इट एज डेटा सेट इज इक्वल टू, पहले जो सी कॉलम है आपका, मतलब थर्ड कॉलम है, वो क्या है आपका एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 2। तो इसको कैसे यूज करेंगे, सो इसको मैं एक काम करता हूँ, एक्स मतलब यहाँ पे क्या ना से दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर कैसे जनरेट करूंगा, सो डी एफ ऑफ ओके, डेटा सेट में पहले मैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेता हूँ, एक्सपीरियंस। ठीक है, सो ओके, सो डी एफ ऑफ एक्सपीरियंस एंड ये जो है हाँ, अभी कैसे इस पे कैसे जनरेट करें नए कॉलम्स। तो मुझे क्या करना है, एक डेटा सेट बनाना है, उसमें 3 कॉलम्स रहेंगे, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। ठीक है, तो उसको मैं डायरेक्टली पीडी डॉट और डेटा फ्रेम से जनरेट करता हूँ। एक्चुअली आप कैसे भी कर सकते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दैट। सो कैसे करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, एंड ये जो डेटा फ्रेम है इसमें आपको क्या क्या देना पड़ता है, 3 चीजें। एक तो आपका डेटा, दूसरी बात आपका जो कॉलम नेम्स है, एंड तीसरा इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस का कोई लेना देना नहीं, पहले मैं प्रोवाइड करता हूँ डेटा। तो ये जो डेटा है ये मैं पास करूंगा एज अ लिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स। तो पहला जो कॉलम है ये आपका स्क्वेयर वाला कॉलम होगा, तो इसको मैं बोलूंगा डीएफ ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो है इनका स्क्वेयर। तो इनका स्क्वायर कैसे करते हैं, इनटू डीएफ ऑफ एक्सपीरियंस करो, या तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे अलग से निकाल के रखता हूँ। तो इसको मैं बोलूंगा ए कॉलम, सो ए इज इक्वल टू डीएफ ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो है इसका पहले मैं नंपाई एरे बनाता हूँ। अगर डेटा, अगर आपका सीरीज का नंपाई एरे बनाना है तो डॉट वैल्यूज लेते हैं, डॉट वैल्यूज। तो डॉट वैल्यूज लेंगे तो इसका बनेगा नंपाई एरे। तो इस नंपाई एरे का, ये जो नंपाई एरे है उसका मैं करना चाहता हूँ स्क्वायर। तो कैसे करें इसका स्क्वायर नंपाई एरे का, सो दैट इज एनपी डॉट स्क्वायर वी कैन यूज, एनपी डॉट स्क्वायर। तो इसलिए नंपाई मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इफ यू डोंट वांट, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। नंपाई में क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर नंपाई में अगर आपको कॉलम के ऊपर कुछ मैथमेटिकल फंक्शनलिटी करना है, तो ये एक नंपाई एरे बन गया एंड उसका आपने कर दिया स्क्वायर।
उसके बाद में जो बी है, बी कॉलम, दैट बी कॉलम इज गोइंग टू बी व्हाट, सिर्फ इतना, मतलब df of experience dot values. एंड ये जो सी कॉलम है, सी कॉलम, कैन आई से दैट ये जो सी कॉलम है उसके सारे वैल्यूज 1 रहेंगे। सो सी कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिंपली सी के सारे कॉलम के सारे वैल्यूज 1 रहेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बाद में करता हूँ, फिलहाल तो सी को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। सो ओनली 2 कॉलम्स आई एम गोइंग टू कंसीडर। तो यहाँ पे डेटा में आई एम गोइंग टू प्रोवाइड ओनली 2 numpy arrays. So what is A and B? So numpy arrays A and B. लेकिन ये जो A and B है ना, ये आपके numpy arrays ऐसे बनेंगे। Let me use pen. तो ये अलग अलग numpy array है ना, तो इसको मुझे कैसे करना है, सो इसको मुझे क्या करना है, दिस इज गोइंग टू बी ए कॉलम, दिस इज गोइंग टू बी कॉलम। ए में कुछ वैल्यूज है, बी में कुछ वैल्यूज है। तो इसको हम क्या करेंगे, यस, इसको हम, यस, हॉरिजॉन्टली स्टैक करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली स्टैक, मतलब ए एंड बी को कनेक्ट कर देंगे। तो वी आर जस्ट गोइंग टू डू इट दिस, वी कैन जस्ट डू इट ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटा में प्रोवाइड करते हुए दोनों को np डॉट हॉरिजॉन्टल स्टैक, एंड स्टैक किसको करूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल स्टैक ए एंड बी को। सो ए कॉमा बी, अभी तक सी कॉलम में नहीं बना रहा हूँ। एंड लेट मी गिव कॉलम नेम्स, कॉलम्स, एंड कॉलम नेम्स लेट मी गिव ए, एंड दूसरा जो कॉलम नेम है लेट मी गिव इट एज बी। ठीक है, सी अभी तक मैंने बनाया नहीं। एंड ये जो है ये डेटा फ्रेम में स्टोर करूंगा, इसको मैं बोलता हूँ डेटा सेट, डेटा सेट। ओके, सो लेट मी जस्ट रन दिस। Sets of value 108, indices imply 108 by 2, कहाँ पे, let me see what is A is and what is B is। ठीक है, तो ये तो दोनों ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली स्टैक हो सकते हैं। ओके 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 ओके, तो ये हॉरिजॉन्टली स्टैक होने के लिए ये व्हाट वी कैन से, ये दोनों 2 डायमेंशनल में होने चाहिए। सो लेट मी जस्ट चेक कि इनको अलग अलग से दिया जा सकता है क्या डेटा फ्रेम में। सो जो डेटा है इसको, डेटा को n dimensional array, iterable dictionary, just like object, if data is dictionary, okay, if data is list of dictionaries, okay okay okay, so let me just use it as like this। तो इसको मैं अभी ऐसे थोड़ा सा अलग से यूज करता हूँ, इस पे मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ डिक्शनरीज। तो यहाँ पे जो ये कॉलम है दैट इज जस्ट गोइंग टू बी वैल्यूज इन ए, एंड दूसरा जो है दैट इज बी कॉलम, एंड उसमें जो वैल्यूज है ये बी आर ए से आएंगे। एंड लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। So let me just display what is data set is। Yes, अभी डेटा सेट में आप देख सकते हैं 2 कॉलम से, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो देख सकते हैं कॉलम ए में स्क्वेयर्ड वैल्यू रहेंगे, देखो ये बी का वैल्यू है, ये उसका स्क्वायर है, ये 3 वैल्यू है उसका स्क्वायर है, ये 4 वैल्यू है उसका स्क्वायर है। अभी इनमें मुझे और एक कॉलम डालना है सी, जिसके ऑल वैल्यू सी हो गए। सो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या किया मैंने, डेटा फ्रेम बनाया, एंड जिसको डेटा जो है मैंने वो एज अ डिक्शनरी दिया। तो डिक्शनरी में ये है होता है आपका कॉलम नेम, एंड ये होते हैं कॉलम के वैल्यूज, ये होता है कॉलम नेम एंड ये होते हैं कॉलम के वैल्यूज। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, ये और सिंपलेस्ट हो गया। ठीक है, नो इश्यूज। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको स्टैकिंग करके करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैकिंग में आपको 2 डायमेंशनल देना पड़ेगा ए एंड बी। ठीक है, तभी वो स्टैकिंग होगा। तो यस, डेटा सेट तो है, अभी इसमें तीसरा कॉलम क्रिएट करते हैं। सो जो डेटा सेट है उसमें तीसरा कॉलम ये सी कॉलम है, उसको मैं डायरेक्टली क्रिएट करता हूँ। डायरेक्टली आई एम गोइंग टू असाइन 1 टू ऑल वैल्यूज ऑफ सी कॉलम। तो यहाँ पे सारे सी वैल्यूज 1 असाइन हो जाएंगे, एंड नाउ यू कैन सी डेटा सेट। तो आप देख सकते हैं डेटा सेट जिसमें 3 कॉलम्स है ए बी सी, एंड जो सी के वैल्यूज है वो सारे 1 है। ठीक है, बी के वैल्यूज जो भी है, मतलब 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, दिस इज एक्स टू द पावर 0, राइट, दिस इज एक्स टू द पावर 1, दिस इज एक्स टू द पावर 2।
तो लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर कि that a is going to be x to the power 2, बाद में b is going to be x to the power 1, that means only x, and c is going to be x to the power 0, मतलब ultimately it is what, all values 1. ठीक है, तो ऐसे ए बी सी कॉलम्स हमने बना दिया. पहले हमारे पास सिर्फ एक्स था, अभी हमारे पास 3 कॉलम्स है. एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड दिस ए बी सी. वाई मतलब आपका वाई वेरिएबल, दैट इज सैलरी. तो इसको हम लीनियर रिग्रेशन करेंगे. सो लेट मी फाइंड आउट, लेट मी इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन. सो फ्रॉम sklearn लीनियर रिग्रेशन के लिए हमें लीनियर मॉडल ही इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल we have to import linear regression class. linear regression class, तो ये class मैंने import किया. So basically I will create the empty model now. So with linear class का एक object बनाया मैंने यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट बनाया. उसके बाद में ये जो मॉडल है उसको ट्रेन करते हैं, मतलब ग्रेडियंट डिसेंट. सो ग्रेडियंट डिसेंट करके हम क्या फाइंड आउट करने वाले, थीटा 0, थीटा 1 एंड थीटा 2, मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ सी, कोएफिशिएंट ऑफ बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो मॉडल डॉट फिट. सो यहाँ पे फिट क्या करेंगे हम, एज अ ट्रेनिंग डेटा. ये है ना, एज अ हम ट्रेनिंग डेटा दे देंगे. 3 कॉलम्स है ना अभी हमारे इनपुट में, तो ये 3 कॉलम्स देंगे हम एज अ ट्रेनिंग डेटा. सो इसका मतलब पूरा डेटा सेट देंगे एज अ ट्रेनिंग डेटा. अभी यहाँ पे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये आपको पता है कि अगर आपको करना है तो स्प्लिट करके टेस्टिंग के लिए कर सकते. यहाँ पे सिर्फ मुझे आपको ये बताना है कि अगर मैंने ऐसा डेटा दिया लाइक कर्व वाला, तो आपको कर्व ही मिलना चाहिए एज अ मॉडल. ठीक है, तो ये आपको x में, ये पूरा आपके x है, करेक्ट. ए बी सी, ये आपके x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन बिटवीन योर डेटा सेट, मतलब ए बी सी एंड योर y वेरिएबल. व्हाट इज y वेरिएबल हियर इज, दैट इज सैलरी. सो ये दिस इज योर y is and this is your capital X is. capital X means it is x1 x2 x3 or a b c in this case. So this is like multi variable linear regression kind of concept. तो ये आप फिट करो, एंड इसके बाद में ये जो मॉडल है इसके वैल्यू आप प्रेडिक्ट करोगे. सो प्रेडिक्ट करके, किसको प्रेडिक्ट करना है आपको, सेम डेटा सेट को ही प्रेडिक्ट करना है. यहाँ पे मैंने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट नहीं किया है, सेम वैल्यू यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट, बट ये प्रेडिक्ट किए वैल्यूज आप प्लॉट कर सकते हो. ठीक है, सो ये जो है इसको मैं बोलता हूँ वाई प्रेडिक्ट. तो अगर ये वाई प्रेडिक्ट किए हुए वैल्यूज अगर लीनियर है तो आपको लाइन दिखेगा, अगर ये कर्व है तो कर्व दिखेगा. तो लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट. तो वाई प्रेडिक्ट वैल्यू आपको मिल गए. तो ये जो वाई प्रेडिक्ट है ना, वाई प्रेडिक्ट, तो ये वाई प्रेडिक्ट देखो कैसा है आपका. एंड जो ओरिजिनल वाई है, ओरिजिनल वाई किस में है, डीएफ ऑफ सैलरी में, डीएफ ऑफ सैलरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट योर एक्स एंड वाई. तो ये जो है ना, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, एंड ये आपका एक्चुअल वैल्यू है. तो प्रेडिक्टेड 2.67 था, एक्चुअल 3 था, थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड वाला, यहाँ पे 2.67 है, यहाँ पे 3.10 है. यहाँ पे 2.67 है, यहाँ पे 3.25 है. यहाँ पे 2.67 है, यहाँ पे 3.50 है. यहाँ पे 4.04 है, यहाँ पे 4.10 है. यहाँ पे 4.04 है, यहाँ पे 4.20 है, लाइकवाइज. तो ऐसे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कर्व मिला कि नहीं. तो लीनियर लाइन में हम लाइन जैसे प्लॉट करते थे, वैसे हम यहाँ पे ये प्लॉट करेंगे. सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, plt डॉट, अभी मैं करता हूँ लाइन प्लॉट. लाइन प्लॉट क्यों, क्योंकि या तो स्कैटर प्लॉट, लेट मी जस्ट यूज स्कैटर. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपके एग्जिस्टिंग जो भी y एक्चुअल है, कैन आई से दैट दिस इज योर y एक्चुअल, तो y एक्चुअल को भी प्लॉट करता हूँ एंड y प्रेडिक्ट को भी प्लॉट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस. तो ये दोनों सैलरी है, दिस इज योर प्रेडिक्टेड सैलरी एंड दिस इज योर एक्चुअल सैलरी. तो दोनों को मैं प्लॉट करता हूँ, इसका मतलब 2 स्कैटर लिखने पड़ेंगे. एक्स एक्सिस पे आपको होगा डीएफ ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, सो ये एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या होगा, अगर ये एक्चुअल डेटा लेना है तो डीएफ ऑफ सैलरी. तो ये एक्चुअल के लिए, एंड लेट मी जस्ट यूज कलर इज इक्वल टू
रेड फॉर दैट. सो ये आपका एक्चुअल डेटा है. सो दैट इज गोइंग टू बी योर एक्चुअल पॉइंट्स. सो दीज आर योर एक्चुअल पॉइंट्स. वैसे ही मैं करूंगा प्रिडिक्टेड पॉइंट्स को प्लॉट. सो स्कैटर एंड जिसमें एक्स एक्सिस पे आपका एक्सपीरियंस ही रहेगा. एक्स एक्सिस पे आपका एक्सपीरियंस ही रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्चुअल सैलरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाई प्रेडिक्ट. वाई प्रेडिक्ट. एंड यहाँ पे जो कलर मैं यूज करूंगा दैट आई एम गोइंग टू यूज एज अ, लेट्स कंसीडर ब्लू. लेट्स कंसीडर ब्लू. अभी देखते हैं कैसे प्रेडिक्ट हुआ. यस, नाउ दिस इज व्हाट इट इज. तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है ना ये कर्व बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इनपुट में है, ये इनपुट में 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे करते, या तो इंस्टेड ऑफ दिस स्कैटर विल जस्ट यूज plt डॉट प्लॉट, लाइन प्लॉट यूज करते, सो दैट दिए जो ब्लू वाले पॉइंट्स है ना दे विल कनेक्टेड टू ईच अदर. सो plt डॉट प्लॉट करते, सो दैट यू विल गेट टू नो कि ये कर्व मिला कि नहीं मिला हमें. नाउ यू कैन जस्ट सी. सो जैसे आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे आपका कर्व मिला. एंड सिंपली हमें डिग्री 2 पॉलिनोमियल यूज करके ये कर्व मिला है. डिग्री 2 पॉलिनोमियल यूज करके हमें ये कर्व मिला है. तो बेसिकली क्या करना है आपको, अगर आपका डेटा पहले तो आप अगर डिस्प्ले, बेसिकली ऐसे नहीं कि डिस्प्ले करके ही देखना चाहिए. अगर आपको मल्टीपल डेटा, अगर मल्टीपल इनपुट वेरिएबल है तो ये आप डिस्प्ले भी नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपका एक्यूरेसी अगर नहीं आ रहा है लीनियर रिग्रेशन से, तो यू कैन गो फॉर पॉलिनोमियल रिग्रेशन. ठीक है. तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डिग्री 2 करना है, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5, लाइक वाइज. तो मेरा बोलना है कि पहले डिग्री 2 चेक करो. अगर डिग्री 2 प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो डिग्री 3 करो. डिग्री 3 में सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे 3 कॉलम्स यूज किए थे ए बी सी, वैसे और एक कॉलम यूज करना पड़ेगा ए बी सी डी. सो वहां पे मतलब और एक कॉलम, मतलब वो कॉलम कौन सा होगा, एक्स क्यूब होगा. तो ये तीनों तो हो गए, उसके साथ एक्स क्यूब भी ऐड करो. उस पर ट्राई करो. अगर वो भी फिट नहीं हो रहा है तो और एक कॉलम ऐड करो, एक्स टू द पावर 4. तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो डेटा है वो आपका मैचअप कर देगा. ठीक है. सो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी नए कॉलम्स बनाए हैं उसको हम लीनियर रिग्रेशन के बेसिस पे हम उसको फिट करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू गिव अस दैट कोएफिशिएंट. तो कौन से कोएफिशिएंट, जो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, मॉडल डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो वो कोएफिशिएंट्स क्या है. सो दीज आर दीज कोएफिशिएंट्स. ये ए का कोएफिशिएंट है, ये बी का कोएफिशिएंट है, एंड ये सी का कोएफिशिएंट है, लाइकवाइज ऐसे हम बोल सकते हैं. सो ये 3 कोएफिशिएंट्स आपको मिल गए. सो ऐसे दिस इज हाउ डू वी डू पॉलिनोमियल रिग्रेशन. अभी और एक बात है कि आपको एक एक चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी होगी कि सर ये आपने कैसे किया, लाइक ये वाला. ठीक है. तो ये आपको डायरेक्टली अगर इनबिल्ट फंक्शनलिटी से करना है तो आप इनबिल्ट फंक्शनलिटी से भी कर सकते हैं. सिर्फ उनको बताना है कि आपको डिग्री 2 पॉलिनोमियल मैच करना है कि डिग्री 3 पॉलिनोमियल मैच करना. तो यहाँ पे एक होता है ऑप्शन. सो फ्रॉम sklearn डॉट आई थिंक प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट पॉलिनोमियल फीचर्स नाम का एक क्लास होता है. यस, पॉलिनोमियल फीचर्स. तो ये क्लास होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये जो पॉलिनोमियल फीचर्स क्लास है, ये क्लास है बेसिकली. इसको बताओ कि आपको कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बना है. तो डिग्री 2 बेसिकली है, तो यहाँ पे आप यूज करो डिग्री 2 लेट से. तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फीचर्स, ये जो पॉलिनोमियल फीचर्स है इसका एक आपने बनाया एक पॉली नाम का एक ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अभी तक इसको मैंने डेटा नहीं दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेटा देंगे. सो उसको हम बोलेंगे पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म नाम का एक फंक्शन होता है. फिट ट्रांसफॉर्म, पॉली पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म नाम का एक फंक्शन होता है. फिट भी करता है, ट्रांसफॉर्म भी करता है. अभी ट्रांसफॉर्म क्यों यहाँ पे, it is not giving me the suggestions. poly dot, ठीक है मैं डायरेक्टली लिखता हूँ फिट ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म एंड इसको मैं देता हूँ आपका
जो भी आपको एक्स मतलब एक्सपीरियंस है यहाँ पे, सो डीएफ ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव प्रोवाइडेड ओवर हियर। तो ये आपका आउटपुट में देगा जो भी तीन कॉलम्स है ए बी सी, दैट इज इट इज गोइंग टू रिटर्न, सो लेट मी कॉल इट एज अ टेम्पररी टेम्प। सो इफ यू डू दैट, ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड 2D array गॉट 1D array इंस्टेड, तो यहाँ पे ये 2D देना चाहिए, ये हमने 1D दिया, सो लेट मी मेक इट एज 2D। ठीक है, सो आप टेम्प देख सकते हैं यहाँ पे, यस नाउ दिस इज योर टेम्प इज। तो आप टेम्प देख सकते हैं, ये जो है ना ये आपका सी है, सारे वन है ना, मतलब ये आपका सी है। बाद में ये जो है 0 1 2, ये जो है ना ये आपका बी है, बी मतलब एक्स। एंड ये जो है ना ये आपका 0 1, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 36 है, मतलब ये क्या है आपका लास्ट वाला एक्स स्क्वायर है। तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स टू द पावर 0। तो ये तीन कॉलम्स आपको उसने दे दिए एज ए नंपायर है, ये 2D नंपायर है सिंपली। तो एज ए नंपायर है आपको ये मिले हैं। सो ये आप डायरेक्टली मतलब ये दो लाइन में आपको मिल गया, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिंपली जो भी मैंने यहाँ पे किया ये सारी चीजें करने की आपको जरूरत ही नहीं है। कहाँ पे किया, ये चीजें करने की जरूरत नहीं, ए बी एंड उसके बाद में सी को ऐसे असाइन करो, लाइकवाइज सी को ऐसे असाइन करो, तो ये जो है ना ये उसने सिंपली आपको डायरेक्टली करके दिया, दैट इज यूजिंग पॉलिनोमियल फीचर्स, यूजिंग पॉलिनोमियल फीचर्स। सो डिग्री 2 दिया तो उसके हिसाब से उसने 3 बनाए। अगर डिग्री 3 किया तो आपको क्या लगता है कितना आना चाहिए? डिग्री 3 किया तो कितना आना चाहिए, व्हाट यू थिंक? डिग्री 3 किया तो यहाँ पे कितने कॉलम्स आने चाहिए? एम आई ऑडिबल? डिग्री 3 पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? व्हाट? डिग्री 3 के लिए मतलब एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा, 1 आएगा, लाइकवाइज राइट। मतलब टोटल कितने आएंगे, कितने कितने हुए, 4 हुए ना, इसमें सिर्फ एक ऐड करना है, दैट इज एक्स क्यूब वाला। तो लेट्स सी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस आप देख सकते हैं अभी कितने आ गए, 4 आ गए, दिस इज 1 कॉलम 2 3 4, ये 4 कॉलम्स है। तो इसमें जो पहला है ये 1 है डायरेक्टली, सो ये टू द पावर 0 मतलब ये डोंट वरी अबाउट इट। सो ये 1 है, मतलब ये 1, ये जो है ना 1 1 वाला कॉलम है, ये जो है ये x वाला कॉलम है, सो आप देख सकते हैं सिंपल x। ये जो है ये स्क्वायर वाला कॉलम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 9 है, सो ये स्क्वायर वाला कॉलम कौन सा, ये वाला। सो ये वाला आपका स्क्वायर वाला कॉलम है, ये वाला। एंड ये कौन सा है, क्यूब वाला है, सो दैट इज एक्स क्यूब। सो ये 2 का क्यूब मतलब x का क्यूब, सो दैट इज 8। 4 का क्यूब दैट इज 64। इसका मतलब 4 कॉलम बने, अगर यहाँ पे 2 बोलोगे तो यहाँ पे 3 बनेंगे। सो दिस इज एज पर द मैथमेटिक्स ओनली, एंड वी जस्ट विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको प्रॉपर ट्रेंड मिला, यहाँ पे प्रॉपरली यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट वैल्यूज ऑफ योर सैलरी विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्स। अभी जब प्लॉट करेंगे तो उस टाइम पे ये 4 कॉलम प्लॉट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बेसिकली यूजर ने आपको एक्स एक ही कॉलम दिया है। तो जब प्लॉट करोगे तो उस टाइम पे आपको एक ही कॉलम यूज करना है टू द प्लॉट, मतलब एक्स। तो ये 4 कॉलम तो हमने एज अ डेटा साइंटिस्ट हमने इनबिल्ट यूज किया, लेकिन ये यूजर को दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, हम यूजर को सिर्फ एक्स एंड वाई के बेसिस पे ये प्लॉट दिखाएंगे कि देखो ये आपने डेटा दिया था उसके हिसाब से दिस इज व्हाट माय मॉडल इज, जो भी करो दिखा रहा है दैट इज व्हाट आवर मॉडल इज, दैट्स इट। ठीक है, सो इफ यू एनी डाउट इनटू दिस यू कैन आस्क।